طلبہ کرام السلام علیکم. بیٹا میں ناظم محمود قاسمی, امریکن لیسٹر ڈی این کے اسکول سسٹم, اردو کا پروفیسر. بیٹا جماعت دہم کا آج جو عنوان ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ہماری نظم نمبر 5, جس کا عنوان ہے کسان. اور نظم کسان کے شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی. روایت کے مطابق بیٹا سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے, انٹروڈکشن, تعارف جو ہماری کتاب میں موجود ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس تعارف میں سے ہمیں ایم سی کیوز اور شارٹ آنسر کوسچنز میں تقریباً 4-6 نمبر کا, 4 سے 5 نمبر کا ہمیں اس میں لازمی پارٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں بیٹا. انٹروڈکشن, تعارف جوش ملی آبادی کا. بورڈ پر میں نے اس کے اہم نکات, پوائنٹس بنا دیے ہیں سارے, جو آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا پوائنٹس ہیں وہ آپ کی بک میں موجود ہیں, وہ میں ریڈ آؤٹ کرتا جاؤں گا, امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتاتا جاؤں گا. ٹھیک ہے بچے, شروع کرتے ہیں. نظم کسان جوش ملی آبادی. انٹروڈکشن. شاعر جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا. کلمی نام جوش ملی آبادی تھا اور تخلص جوش تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں تخلص کسے کہتے ہیں. تخلص ایسا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہو. ٹھیک ہے, وہ نام تخلص کہلاتا ہے. تو تخلص ان کا کیا تھا بیٹا؟ جوش. آپ سن 1898 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے. جوش کا خاندان جاگیردارانہ نظام پر مبنی تھا. جوش کا بچپن اور لڑکپن بہت آسودگی میں گزرا. آسودگی مطلب غربت میں. ٹھیک ہے, جائیداد تقسیم ہونے کی وجہ سے کافی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں گھر پر ہی حاصل کی, لیکن اپنی تعلیم کو اپنی مالی آسودگی کی وجہ سے ادھورا چھوڑ دیا اور اس کے بعد ملازمت, ایک جگہ پر ملازمت شروع کر دی. بیٹا ملازمت کے ساتھ ساتھ آپ کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ آپ نے علم کے میدان کو چھوڑا نہیں, آگے بڑھنا شروع کیا. سینٹ پیٹرک کالج آگرہ سے اور علی گڑھ کالج سے آپ نے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کیا, اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد سینئر کیمبرج سے آپ آگے نہ بڑھ سکے. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے مزید آگے علم حاصل نہ کر سکے. سینئر کیمبرج تک تعلیم حاصل کر کے اور پھر اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ دیا, اور 1924 میں حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہو گئے بیٹا. اور اس کے علاوہ یہاں سے جب آپ ملازمت آپ نے چھوڑی تو اس کے بعد متعدد رسالوں میں آپ لکھتے رہے. ٹھیک ہے, جوش ملی آبادی کے دادا اور پردادا شاعر تھے بیٹا. اس طرح شعر و شاعری آپ کو ورثے میں ملی تھی. رابندر ناتھ ٹیگور کی شاعری سے آپ بہت متاثر تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری میں اس کے بہت سے اثرات ملتے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور کی. ٹھیک ہے, اگر جوش ملی آبادی کا اسلوب بیان دیکھیں تو یہاں پر کتاب میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے, جوش ملی آبادی زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے, الفاظ کے درست استعمال میں مہارت رکھتے تھے. رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے. غزل گوئی سے آپ کو بالکل لگاؤ نہ تھا, بلکہ آپ کا شمار نظم گو شعراء میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کی لکھی ہوئی تصانیف میں روح ادب, شعلہ و شبنم, حرف و حکایت, سنبل و سلاسل, شاعر کی راتیں, یادوں کی بارات وغیرہ شامل ہیں. اور بالآخر سن 1982 کو آپ اسلام آباد میں اس دنیا فانی کو خیر باد کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. بیٹا یہ تھا شاعر کا تعارف.
अब चलते हैं नज़म किसान की तरफ। तो नज़म किसान में बेटा जो अशार हैं उनके मफाहीम मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं, आपको इंशाअल्लाह ताला साथ साथ बताते जाएंगे, मफाहीम भी और इसकी तशरीह हम करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। पहला शेर है इस नज़म का किसान का। बेटा जैसा कि नज़म का उन्वान ही हमें बता रहा है कि इस नज़म में हम क्या पढ़ेंगे, इस नज़म में हम पढ़ेंगे किसान की जिंदगी के मुताल्लिक, किसान के काम के मुताल्लिक, ठीक है, किसान की सीरत के मुताल्लिक इस नज़म में हमने पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो बिला ताखीर पहला शेर शुरू करते हैं। पहला शेर है झुटपुटे का नर्म रो दरिया शफक का इल्तिराब, झुटपुटे का नर्म रो दरिया शफक का इल्तिराब, खेतियां मैदान खामोशी गुरूब आफताब। ठीक है, इसके बेटा मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लें अपने पास। झुटपुटे, झुटपुटा बेटा कहते हैं अंधेरे और उजाले के मिलने का वक्त। ठीक है, ये दो औकात होते हैं, एक वो वक्त जब सूरज तुलू हो रहा होता है और रात की तारीकी खत्म हो रही होती है, वो झुटपुटे का वक्त है, और दूसरा वक्त होता है जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है और तारीकी आसमान पर छा रही होती है, वो वक्त झुटपुटे का वक्त कहलाता है। ये दो औकाते कार होते हैं बेटा झुटपुटे का। ठीक है, झुटपुटे का नर्म रो दरिया, नर्म रो आहिस्तगी से बहने वाला, ठीक है, दरिया शफक का इल्तिराब, शफक कहते हैं आसमान पर मौजूद सुर्खी को। ठीक है, झुटपुटे का नर्म रो दरिया शफक का इल्तिराब, इल्तिराब का मतलब बेचैनी, खेतियां मैदान खामोशी गुरूब आफताब। ठीक है, अब एक मंजर बयान कर रहे हैं इस शेर में, शायद इसके मफहूम को पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। शाम के वक्त दरिया बड़ी रवानी से बह रहा है, शाम के वक्त दरिया बड़ी रवानी से बह रहा है, आसमान पर फैली हुई सुर्खी में बेचैनी है, गुरूब आफताब के वक्त खेत और मैदान में खामोशी छा चुकी है। एक मंजर बयान कर रहे हैं इस शेर में, शायद कहते हैं कि झुटपुटे का वक्त हो चुका है, शाम का वक्त हो चुका है, दरिया बड़ी रवानी से बह रहा है, ठीक है, और आसमान पर जो मौजूद सुर्खी है शफक का इल्तिराब, उसमें बेचैनी मौजूद है। ठीक है, और खेतियां, खेतों में, मैदान में गुरूब आफताब की वजह से खामोशी छा चुकी है। ठीक है, दूसरे शेर की तरफ चलते हैं बेटा। ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा तहजीब का परवरदिगार। ये समा, समा का मतलब मंजर, समा मंजर, कवि मजबूत ताकतवर, कवि मजबूत, काश्तकार बेटा किसान को कहते हैं, काश्तकार किसान, इर्तिका तरक्की करना बढ़ना, पेशवा रहनुमा को कहते हैं, पेशवा रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, तहजीब रहन सहन रहने सहने का अंदाज, परवरदिगार पालने वाला, परवरदिगार पालने वाला। चलते हैं शेर के मफहूम की तरफ बेटा। मफहूम नंबर 2, ये मंजर एक मजबूत बदन वाले इंसान यानी किसान जो इर्तिकाए इंसानी का रहनुमा और तहजीब को तरक्की देता है। जी बेटा, शेर नंबर 2 में शायद जो है पहले शेर से दूसरे शेर को जोड़ते हुए बयान कर रहे हैं। क्या जो कैसे जोड़ रहे हैं? कहते हैं ये मंजर, अब कौन सा मंजर जो पहले शेर में बताया है? क्या बताया पहले शेर में? पहले शेर में मंजर बयान किया है कि शाम का वक्त दरिया का रवानी से बहना, खेतों में मैदानों में हर तरफ खामोशी का छा जाना और आसमान पर मौजूद सुर्खी में बेचैनी होना, ये मंजर पूरा बयान किया। और उस मंजर में कहते हैं कि ऐसे मंजर में एक इंसान नजर आ रहा है जो कौन है? जो है किसान। कौन है? किसान है बेटा,
जो क्या कर रहा है, इर्तिकाए इंसानी, इंसान को तरक्की देने वाला है, इंसान की तरक्की का रहनुमा है। ठीक है, इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है, कौन बढ़ा सकता है, किसान। ठीक है, और तहजीब को तरक्की देने वाला है, तहजीब को पालने वाला है कौन बेटा, किसान। किसान की जात ही है जो इंसान की, किसी भी इंसान को, किसी भी मईशत को चला रही है। किसान अगर फसल ना बोए, वक्त पर काश्तकारी ना करे, वक्त पर बिजाई सिंचाई ना करे, तो बेटा हमें खाने पीने का सामान कहीं पर भी दस्तयाब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। गर्ज ये कि किसान है तो इंसान है, किसान है तो तहजीब है, किसान है तो ये दुनिया और ये कायनात है। ठीक है बेटा, समझ आई शेर नंबर 2 की। चलते हैं तीसरे शेर की तरफ। जी, तीसरा शेर है, जलवाए कुदरत का शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह। जलवाए कुदरत का शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह, माह का दिल महरे आलम, ताब का नूरे निगाह। माह का दिल महरे आलम, ताब का नूरे निगाह। जी, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लीजिए बच्चे अपने पास। जलवाए कुदरत, जलवाए कुदरत, अल्लाह के पैदा करदा नजारे, ऐसे नजारे जो रब्बे ताला ने पैदा किए हैं। शाहिद गवाह, शाहिद गवाह, गवाही देने वाला। हुस्न खूबसूरती, हुस्न खूबसूरती। फितरत अल्लाह का पैदा करदा या कुदरत। ठीक है, माह चांद को कहते हैं, महर सूरज को कहते हैं, आलम कायनात को कहा जाता है, दुनिया को कहा जाता है, ताब चमक रोशनी, नूरे निगाह नजर का उजाला, नूरे निगाह नजर का उजाला। ठीक है बच्चे, ये इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने थे। चलते हैं इस शेर के मफहूम की तरफ। किसान की जात अल्लाह के कुदरती नजारों और उसकी खूबसूरती की गवाह है। मेहनत की वजह से चांद और सूरज की रोशनी भी किसान की आंखों का नूर है। समझ आई बेटा इस मफहूम की। इस मफहूम में शायद किसान को खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। कैसे? उनकी तारीफ करके, उस किसान को, उस किसान की बड़ाई बयान करके खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि किसान एक ऐसी जात है, वाहिद ऐसी जात है जो अल्लाह ताला के हर कुदरती मंजर की शाहिद है, गवाह है। किसान की जात गवाही देती है। सुबह सवेरे के मनाजिर इंसान नहीं देख पाता, कोई आम इंसान नहीं देखता, लेकिन किसान खेतों में जाकर वो तमाम मनाजिर देखता है। आसमान के बदलता है रंग, आसमान कैसे कैसे। बेटा आसमान पर कितने रंग जाहिर होते हैं, नमूदार होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसान की जात जानती है। ठीक है, और शायद एक और तरीके से कहता है कि चांद और सूरज की जो रोशनी है वो भी किसान की मरहून मन्नत है, किसान की नूरे निगाह है, किसान की आंखों का नूर है। ठीक है, चलते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आंच बन जाती है सीले रंगो बू। जी, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लें बच्चे। रग कहते हैं नब्ज को, रग नब्ज। खाशाक सूखी घास, सूखी घास। आंच कहते हैं तपिश को, आंच तपिश। सीले रंगो बू खुशबू का सैलाब, सीले रंगो बू खुशबू का सैलाब। आते हैं इसके मफहूम की तरफ बेटा। तो शायर कहते हैं किसान अपने खूने जिगर से फसलों को सैराब करता है, उसके दिल की हरारत इस दुनिया में खूबसूरती पैदा करती है। ठीक है बेटा, इस शेर में मजीद एक नए अंदाज में शायर
किसान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि किसान क्या है, किसान मेहनत करता है, जिगर तोड़ के मेहनत करता है, और उसकी सख्त मेहनत की वजह से क्या होता है, वो अपने खून से अपनी फसलों को सैराब करता है, और उसके दिल की जो हरारत है, उसकी हरारत की तपिश से इस दुनिया में खूबसूरती पैदा हो रही है। ठीक है बच्चे, ये 4 अशार हमने आज किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में इसके बाकी मजीद 4 अशार और इसके मशकी सवालात करेंगे। बेटा तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।